Hi guys, I hope everybody is doing well. In today's session, we are going to discuss regarding whatever updates that have happened in semester 2 intermediate MME course. So there was a new, there were a few updates in the syllabus for intermediate MME for semester 2, which is basically a BA Honors Economics course. So उसमें क्या क्या updates हुई हैं, we are going to discuss that once, ठीक है? So that will be the agenda for this particular session. So I'll just start sharing my screen and let's proceed from there. All right, so this particular uh, minutes of the meeting is relevant for intermediate MME, BA honors students. It's only relevant for BA honors students. And this particular meeting happened on 23rd of January, 2024. But, there were quite a lot of delay in this meeting coming out. There is a reason for that. First of all, basically, let me just discuss a few pointers here. There were a lot of discussion which happened regarding is there any need for any other material to be removed. So there were discussions on that, and then there were a few topics which your class teachers thought that not so much contributing to your course, but they are using a lot of time that lot of time in the class basically. So those topics. So then basically there was a recommendation of doing everything, discussing amongst teachers, and then again sitting on 30th of January and deciding if there are any updates needed. That is why there was a delay in this particular meeting. So what all has happened, let me just discuss that. And if there are a few pointers that I would like to make, so I'll just make that also. So there was a committee which was made up, subcommittee made up, and the subsections or the topics which want to be removed were discussed. And these are the following topics which are going to be removed. So basically in this meeting, they haven't mentioned anything regarding what is the course. So the course, the default course is what was the course last time. So basically जो भी आपका लास्ट टाइम कोर्स था, एक बारी मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ताकि वी हैव द रेफरेंस पॉइंट क्लियर इन आवर माइंड. तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये था, ठीक है. यूनिट 1 होगा हमारा लीनियर अलजेब्रा, और हमारी जो रेफरेंस बुक होगी वो सिक्सेटर एंड हैमंड होगी, चैप्टर 2002 एडिशन, जो आपने अपने फर्स्ट कोर्स में भी की थी, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14. एंड यूनिट नंबर 2 विल बी फंक्शंस ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल्स. बेसिकली जो आपने पहले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देखा था, अभी फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स देखेंगे. उसके लिए रेफरेंस बुक था चैप्टर नंबर 15 एंड 16 फ्रॉम द सेम बुक्स एटसेट्रा एंड हैमंड. And unit number 3 was multivariate optimization, and the reference for this particular unit would be chapter number 17. So this is basically your default course. ये course है default, ठीक है. Chapter 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So 12 to 17 chapters of your book, Sitsetter and Hammond. ये आपका default reference है, ठीक है. Basically, this was your last year's reading, 17th March 2023. अब ये जो कोर्स है इसमें क्या क्या चेंजेस की जरूरत है वो इस बार डिस्कस हुआ है. तो उन्होंने डिफॉल्ट में कोर्स आपका नहीं दिया है, बट सिर्फ वो सारे सेक्शंस मेंशन किए हैं जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है ना. सो लेट्स जस्ट डिस्कस दोज थिंग्स. So the following sections and results, they were deemed irrelevant. They are not relevant for you and inadequately treated in the book. So either they're not relevant for you or the book doesn't discuss them properly. Hence, they will be deleted from the syllabus for the students. ठीक है. क्या क्या sections deleted है?
पहली बात सेक्शन नंबर 13.3 विच इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज योर लीनियर अलजेब्रा वाला चैप्टर 13 फ्रॉम द बुक। डिटर्मिनेंट्स निकालना ऑफ ऑर्डर है। डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकालते हैं टिल ऑर्डर 3 by 3, वहां तक तो हमने सीखा हुआ है। लेकिन जहां पे भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एन हो गया वो टॉपिक्स आपको नहीं करना है। सो बुक में जो सेक्शन 13.3 है दैट यू डोंट हैव टू डू, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, proof of theorem 13.3. So actually there was some problem which I kind of found, which was if you basically go through section theorem 13.3 ना, अगर आप theorem 13.3 देखते हो तो theorem 13.3 is actually talking about properties of inverse। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने थियोरम 13.3 और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अब ये थोड़ी सी इन्होंने कंफ्यूजिंग बात बोल दी है। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक व्हाइल स्पीकिंग एनीथिंग, तो अगर मैं थियोरम 13.3 की बात करूं, थियोरम 13.3, सो जहां पे भी थियोरम, सो थियोरम 13.1 जो है ना, थियोरम 13.1 अगर आप अपनी बुक में पेज नंबर 451 में देखोगे, सो वो जो है रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करती है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि प्रूफ ऑफ थियोरम 13.3 विच इज ब्रैकेट रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट्स करनी है लेकिन इसके प्रूफ्स नहीं करने हैं बेसिकली। ठीक है, बट आई पर्टिकुलरली थिंक दीज प्रूफ्स वर नॉट वेरी डिफिकल्ट, that they were not able, I mean they were not understood, I don't know why they have done this, but अगर मैं theorem 13.3 की बात करूं तो theorem 13.3 जो लिखा हुआ है वो 13.3 की अगर बात करें तो जो theorem 13.3 लिखा हुआ है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो अगर आप थियरम 13.3 के हिसाब से जाओगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स वाला टॉपिक है, पेज नंबर दिस इज एक्चुअली ऑन 465। ठीक है, एंड उसमें जो है प्रूफ्स है ABCD। तो इन्होंने बोला है कि ये प्रूफ्स आपको नहीं करना है, बस स्टेटमेंट्स देखनी है। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से जाओगे रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से, तो बेसिकली आपको रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं बट उसका प्रूफ नहीं करना है। So I'm not quite sure about this particular point. So, it would be helpful if one of you, I mean, if you could ask your teachers regarding this particular point. That if you go by theorem 13.3, it's talking about properties of inverse. And if you talk about rules of determinants, that's a different, basically, point. But just to be, kind of on a comfortable situation that you don't miss out on anything, you can do both. Okay. So whatever sections that have been mentioned after that, they're not very complicated. You can still do it. Okay. ताकि आपको कोई confusion ना हो. So that would be my recommendation, since there is a little bit of confusion here. You can still go ahead and do both of these things. ठीक है, so yeah, either you can clarify it with your teachers कि ये properties of inverse के बारे में बात हो रही है या rules of determinants के बारे में बात हो रही है, but you can try and see regarding this. So this was one thing which I kind of felt that it's kind of not so clear. So yeah, I pointed it out here. Okay, the next thing is proof of formula 13.19, which is cofactor expansion of determinants of order n. So there's one formula 13.19 जहाँ पे कोफैक्टर का मेथड यूज करके डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसका प्रूफ नहीं करना है बेसिकली आपको। ठीक है, सो दैट प्रूफ यू डोंट हैव टू डू, एंड I think this particular part, I will tell you where this particular section is. Okay. So because the determinants of order n भी हमने नहीं किया था, तो co-factor expansion अगर हो रहा है determinants of order n का, तो वो भी आपको स्किप करना है। ठीक है,
So ये चीजें हो गई. So these were all the things that you have to not do from your linear algebra topic. एंड उसके अलावा एक और पार्ट है जो आपको लीनियर अलजेब्रा में से नहीं करना है, विच इज सेक्शन 14.6, विच इज स्पेक्ट्रल थ्योरम. सो सेक्शन 14.6, चैप्टर नंबर 14 जो है लीनियर अलजेब्रा का, वो 14.6 जो टॉपिक है वो इंटायरली आपको स्किप करना है. ठीक है. सो दीज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एन. ठीक है. एंड इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ थ्योरम 13.3 एंड रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट, बट आई वुड जस्ट से जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, you can do it. It's not very complicated. ठीक है. And proof of cofactor expansion of determinants of order n. This you have to skip. ठीक है. उसके अलावा there is one section in chapter number 15. There is one particular example जो आपको skip करना है. So एक section है chapter number 15 which is functions of several variables. वहां से एक particular example है जो आपको skip करना है. It's not a section that you have to skip. It's one particular example that you have to skip, and that example is talking about linear regression. That example you have to skip. Okay. उसके अलावा section 16.6 and 16.7 on Leibniz formula. अब यहाँ पे भी मुझे एक लगता है कि शायद मे बी बहुत चीजें स्पेसिफाई करने में प्रॉब्लम हो गई है. तो अगर आप सेक्शन 16.6 एंड 16.7 देखोगे, सो दैट इज वेरी डिफरेंट. ठीक है. तो अगर आप सेक्शन 16.6 एंड 16.7 देखोगे, सो दैट इज टॉकिंग अबाउट homogeneous and homothetic functions and implicit differentiation. ठीक है. तो लेकिन यहाँ पे बात हुई है कि ये लेबनीज फॉर्मूला जो है वो वाला पोर्शन आपको स्किप करना है. ठीक है. बिकॉज ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट होता है. और इंटीग्रेट, आई थिंक माई लॉजिक इज कि बिकॉज आप इंटीग्रेशन अपने एडवांस एमएमई कोर्स में करते हो विच इज इन योर थर्ड सेमेस्टर, एंड राइट नाउ यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. सो लेबनीज फॉर्मूला जहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूसेज हो रहा है, वो वाला पार्ट दे माइट हैव वांटेड टू स्किप. ठीक है. लेकिन सेक्शन 16.6 एंड 16.7 का इसमें कोई लेना देना नहीं है. अगर मैं लेबनीज फॉर्मूला की बात करूं, so we are going to find that somewhere in this particular section which is section 16.2. तो अगर आप section 16.2 चेक करोगे, 16.2 अगर हम लोग चेक करते हैं, सेक्शन नंबर 16.2. हाँ जी. तो सेक्शन नंबर 16.2 जब हम करते हैं, उसमें हम लोग चेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल चेन रूल. उसके बाद हमारे पास ना पेज नंबर 565 एक छोटा सा सेक्शन आता है रिगार्डिंग द लेबनीज फॉर्मूला. ठीक है. यहाँ पे लेबनीज फॉर्मूला के बारे में ही बात हो रही है, या लेबनीज फॉर्मूला. तो वो जो है वो दो पार्ट्स आपको स्किप करने हैं, ऐसा बोला गया है. तो अब यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू. वर दे रेफरिंग टू एग्जाम्पल 16.6 एंड 16.7? बट एग्जाम्पल 16.7 एंड 16.8 जो है वो बेसिकली लेबनीज फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड जो लेबनीज फॉर्मूला है वहां पे दो रेफरेंसेस यूज किए गए हैं, which is 16.7 and then the derivative part which is 16.8. ठीक है ना. तो basically I kind of feel that they are just talking about Leibniz formula, and section 16.6 and 16.7 on Leibniz formula. तो ये section 16.6 की बात नहीं हो रही है because section 16.6 is general homogeneous and homothetic functions which has nothing to do with Leibniz formula. And then there's more on implicit differentiation which also doesn't have anything to do with लेबनीज फॉर्मूला. सो मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि लेबनीज फॉर्मूला वाला जो सेक्शन है वो आपको स्किप करना है फ्रॉम सेक्शन 16.2. So if you would want more clarification, you can ask your teachers regarding this point as well. So ये जो दो points हैं इनमें थोड़ा सा इन्होंने, I particularly felt a little confused regarding these 2 points. One is this
and the other one was this. ठीक है, rest everything is very very clear. उसके अलावा सेक्शन 16.10 इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, वहां पे पहले भी वो पार्ट जनरली लिखा होता था ऑप्शनल, बट अब वो पार्ट पूरा ही स्किप कर दिया है, तो चैप्टर 16 में से सेक्शन 16.7 आपको पूरा स्किप करना है. एंड देन continuous version of Jensen's inequality. So chapter number 17 जो है, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस, वहां पे जेनसन्स इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. तो उसका डिस्क्रीट वर्जन भी है, कॉन्टिन्यूस वर्जन भी है. उसका छोटा सा कॉन्टिन्यूस वर्जन है, वो पार्ट आपको स्किप करना है. ठीक है, दैट पार्ट यू हैव टू स्किप. सो या बेसिकली ये पोर्शंस आपको सारे स्किप करने हैं. आई विल जस्ट give also mention, I will also show you whatever I've shown you ऊपर, that will give you more clarification on which part you have to skip. तो यहाँ पे जो जो sections आपको नहीं करने हैं वो सब mention किए हुए हैं. ठीक है, उसके अलावा the final term examination, it may consist of 3 sections and each section will comprise questions with varying degree of difficulty. Exam का scheme क्या है? 40 marks section A, 30 marks section B and section C में से 20 marks, और 4 questions आपको attempt करने होंगे out of 6, 10 marks के होंगे. 3 questions attempt करने हैं यहाँ पे आपको out of 4, जिसमें 10 marks का पूरा content होगा. एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 3, कैरिंग 10 मार्क्स ईच. ठीक है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर इंटायर सिचुएशन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. ठीक है, एंड या तो बेसिकली मेन रेफरेंस बुक अपना आपके लिए जो मेन चीज रेलेवेंट है वो ये है कि सिटसेटर एंड हैमर हमारा मेन रेफरेंस बुक है, और ये कुछ कुछ पोर्शंस जो है वो हमारे स्किप हो गए हैं. ठीक है, तो ये मेन चीज है अपनी. या दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. उसके अलावा जस्ट टू गिव यू a little recap of which particular sections you don't have to do. So जो आपका फर्स्ट यूनिट है लीनियर अलजेब्रा, दैट कंटेन्स चैप्टर 12, 13 एंड 14. 12 में यू हैव टू डू एवरीथिंग. चैप्टर 13 में जो सेक्शन 13.3 है दैट यू हैव टू स्किप. एंड इसमें जो है ये एक्सपेंशन बाय कोफैक्टर, जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन देखा था, उसमें एक थियोरम है, उसका प्रूफ स्किप करना है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स वाला टॉपिक या फिर बेसिक रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बट आई थिंक लाइक इफ आई हैव टू चूज, बेसिक रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स बहुत ही स्पेसिफिकली ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उसका जो प्रूफ है वो आप स्किप कर सकते हो. रेस्ट यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ऑल्सो. ठीक है, बट माई सजेशन, इफ यू वांट टू बी श्योर अबाउट एवरीथिंग, just don't skip anything in that, neither here nor here, you can just continue with that. ठीक है, ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो. एंड इसका एक छोटा सा 13.19 का प्रूफ है, वो पार्ट आप स्किप कर सकते हो, चैप्टर नंबर 13. ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 जो है वो एवरीथिंग यू हैव टू डू एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट विच इज स्पेक्ट्रल थ्योरम. तो सेक्शन 14.6 जो है दैट यू कैन इंटायरली स्किप. सेक्शन 14.6 स्पेक्ट्रल थ्योरम, यू कैन बेसिकली गेट रिड ऑफ दैट. ठीक है, क्योंकि सेक्शन 14.6 की अगर बात करें तो सेक्शन 14.6 में स्पेक्ट्रल थ्योरम ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. ठीक है, all right, so that being said, that's what you have to do in linear algebra. And then your unit 2 functions of multiple variables, वहां पे क्या है, सेक्शन 15.7 है, जहां पे हम लोग लीनियर मॉडल्स विद क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं. वहां पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो आपको स्किप करना है, विच इज बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, देन चैप्टर नंबर 16 में सेक्शन 16.2 है, जहां पे लेबनीज फॉर्मूला की बात हो रही है. तो बिकॉज द फॉर्मूला द ब्रैकेट में बहुत बहुत ही आराम से लिखा हुआ है लेबनीज फॉर्मूला, सो यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर पोर्शन. ओके, that's basically what my understanding is saying, and it makes sense also because you have not done integration and it's very complicated also. So teachers must have realized that, you know, there's no point doing this particular topic, so you can skip that. Okay, एंड उसके अलावा दिस पर्टिकुलर इम्प्लिसिट फंक्शन थियरम वाला जो सेक्शन है वो भी आपको पूरा स्किप करना है. एंड चैप्टर नंबर 17 विच इज योर लास्ट यूनिट, उसमें से जो है आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेक्शन है 17.6, छोटा सा सेक्शन स्किप करना है. ये सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है. तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शन में एक जेनसन्स इनइक्वालिटी आती है, उसका डिस्क्रीट वर्जन भी है और कॉन्टिन्यूस वर्जन भी है.
उसका कॉन्टिन्यूअस वर्जन जो है वो आपको स्किप करना है, ठीक है। सो माय सजेशन ऑफ हाउ यू कैन बेसिकली डू एवरीथिंग इज व्हेनेवर यू स्टार्ट स्टडिंग जस्ट सी जो भी चैप्टर है उसमें से कौन सा पोर्शन आपको स्किप करना है, और रेफरेंस के लिए आप ये चीजें भी देख सकते हो, दीज थिंग्स, कि कौन सा पार्ट आपको स्किप करना है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी टू मच अबाउट इट। चैप्टर 12 to chapter 17 with specific small sections skipped which are also very clearly mentioned here, ठीक है। सो जहां पे भी ये वाले सेक्शन का डिस्कशन है वो वाला लेक्चर आप आराम से स्किप कर दो, रेस्ट यू नो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। So that was basically all that I wanted to discuss for this particular part. If you have any queries or anything, you can just let me know. And yeah, okay. Thank you so much. And we'll soon be getting regular with all the classes and doubt sessions and everything. Yeah, okay. All right. Thank you. Bye bye.